हाँ तो बच्चों, today we will discuss about nucleus. Nucleus is regarded as most important organelle and controller of the cell. इसको क्यों बोलते हैं controller of the cell? Because it controls activities activities of all other organelles. Secondly, it contains genetic material. Genetic material. These are the two important reasons behind its importance. ठीक है ना? इसको हम मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनली इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये कंट्रोल करता है एक्टिविटीज दूसरी ऑर्गेनलीज की एंड जेनेटिक मटेरियल इसके पास होता है जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करता है एक सेल से उसकी प्रोजेनी सेल के अंदर. ओके, नाउ we will discuss about nucleus in detail. First of all, we will discuss about discovery. Discovery of nucleus. The term nucleus was coined by Robert Brown, but it was first observed by the nucleus was first observed by Anton van Leeuwenhoek. Anton van Leeuwenhoek, and the material of its first study was RBC, RBCs of fish. ठीक है. Anton van Leeuwenhoek just called it as darkly stained body present at the center of cell. Okay, but the term nucleus was coined by Robert Brown. Robert Brown. He also explained its function. Okay. So nucleus was first explained and named by Robert Brown. Okay. So that was about discovery of nucleus. हाँ, इसका जो मटेरियल था, मटेरियल ऑफ स्टडी was root cells of orchid. ऑर्किड प्लांट की रूट्स की सेल के अंदर इन्होंने न्यूक्लियस को स्टडी किया था. ओके, सो लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज प्रेजेंस और एब्सेंस. न्यूक्लियस की अगर हम बात करें प्रेजेंस और एब्सेंस की, तो मोस्ट ऑफ द सेल्स कंटेन्स न्यूक्लियस which we see around us, but many of the cells do not contain nucleus, well defined nucleus. So on the basis of presence or absence of nucleus, we have two types of cells. यहां पर लिख लेना on the basis of, लिख देता हूं मैं, on the basis of presence or absence of nucleus. जो सेल्स हैं वो दो मेजर टाइप की होती हैं. वन टाइप इज रिगार्डेड एज prokaryotic and another one is eukaryotic.
Karyotic. Prokaryotic are the cells. देखो पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं. Pro means primitive and karyon means nucleus. ये भी इसी तरह से दो वर्ड से मिलके बना है. U means true and karyon means nucleus. So those cells which have primitive nucleus are called as prokaryotic, and eukaryotic which have well-defined nucleus or true nucleus. True nucleus. ठीक है. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक्चुअल में होता क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर. मैं सेल इतनी अच्छी नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ जेनेटिक मटेरियल पे कंसंट्रेट कर रहा हूं यहाँ पर. ठीक है. तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है, genetic material just remains scattered at one portion of protoplasm and it is not surrounded by any membrane. In case of prokaryotes, the genetic material remains scattered at one portion of protoplasm and it is not surrounded by any nuclear membrane or nuclear envelope. While in case of eukaryotes, the cells have well-defined double membrane bound nucleus. और nucleus is a enveloped structure, ठीक है, which contains genetic material. तो ये फर्क है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस के बेसिस पे. ओके. Although most of the eukaryotic cells have a well-defined nucleus, but there are some exceptions. यूकैरियोटिक सेल्स में भी कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. यानी कि ये वो सेल्स हैं जिनके पास यंग स्टेज में तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, लेकिन जैसे जैसे उनके पास मैच्योरिटी आती है, जैसे वो अपने फंक्शंस के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं, तब उनका न्यूक्लियस जो है खत्म हो जाता है. जैसे कि हमारी उसका एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स व्हिच डिड नॉट हैव न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी आर ह्यूमन आरबीसीज. If you are seeking the examples of plants, then we will include sieve tube elements, of phloem. ये phloem के अंदर होती है plants के अंदर. Of phloem and tracheids and vessels. Tracheids and vessels of xylem. xylem के अंदर जो tracheids और vessels हैं, उनके अंदर भी nucleus absent होता है. They are dead cells at maturity. But human RBCs are living cells at maturity, but they still did not have nucleus. The cells which did not have nucleus, their activities are controlled by neighboring cells. Okay. So these are the examples of eukaryotic cell which did not have nucleus at maturity. So now we will discuss about other aspects of nucleus. We are now talking about position of nucleus. ठीक है. तो जब हम पोजीशन के बारे में बात करते हैं, तो न्यूक्लियस इज जनरली लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ सेल. सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है जनरली तो. लेकिन जब हम बात करें प्लांट सेल की, प्लांट सेल्स bears a big central vacuole which displaces the nucleus to one side. Therefore, that type of nucleus is called as acentric nucleus. ठीक है. Mostly nucleus is present at the center of cell, but plant cells which have big central vacuole displaces nucleus to one side. यहाँ पर ये न्यूक्लियस शो कर रखा है और ये वैक्यूल है, तो इसने क्या किया, इसको एक साइड में डिस्प्लेस कर दिया, तो इस वजह से इस न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे,
असेंट्रिक न्यूक्लियस। तो ये था पोजीशन के बारे में। आगे हम बात करेंगे शेप ऑफ न्यूक्लियस, शेप के बारे में। न्यूक्लियस इज राउंडेड इन मोस्ट ऑफ द सेल्स, चाहे वो सेल राउंडेड हो पॉलीगोनल हो और स्क्वायर शेप्ड हो, स्क्वायर शेप्ड और polygonal. In all these cases, nucleus will be, nucleus कैसा होगा इन केसेस में? राउंडेड रहेगा। ठीक है, मोस्टली राउंडेड ही रहता है, इन सेल्स के केस में राउंडेड ही रहेगा। लेकिन अगर सेल्स होंगी सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल cells will have disc shaped nuclei, disc shaped। ठीक है, जब सेल्स होंगी फ्लैट, फ्लैट cells will have, oh sorry, cylindrical cells have lens shaped nuclei, lens shaped nuclei, while flat cells will have disc like nuclei। ठीक है, शेप से पता चल रहा है सिलेंड्रिकल सेल्स में लैंड शेप्ड होता है और जो फ्लैट सेल्स हैं दिस सेल्स विल हैव डिस्क लाइक न्यूक्लियाई। हो गई शेप के बारे में बात। आगे हम बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के बारे में। मोस्टली सेल्स हैव वन न्यूक्लियस पर सेल, ठीक है ना, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। उस कंडीशन को हम बोलेंगे, अगर वन न्यूक्लियस हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनी न्यूक्लिएट। यूनी न्यूक्लिएट। अगर दो न्यूक्लियस हो तो क्या बोलेंगे? बाई न्यूक्लिएट। cells which have two nucleus or more nuclei, more than two nuclei is just plural of term nucleus। ठीक है ना, टू न्यूक्लियाई भी हम यहां पर लिख सकते हैं, टू न्यूक्लियाई। ठीक है, लेकिन एक के लिए टर्म हम न्यूक्लियस यूज करेंगे। न्यूक्लियाई इज जस्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस। तो मोर देन टू न्यूक्लियाई देन इट इज कॉल्ड एज पोली न्यूक्लिएट कंडीशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के बेसिस पे होता है। पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशंस के लिए कुछ स्पेसिफिक टर्म यूज की जाती हैं। पॉलीन्यूक्लिएट, पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन के लिए दो टर्म्स यूज की जाती हैं, syncytial and another is syncytic। These terms are generally used synonymous to each other, but they can be differentiated from each other on the basis of formation of nuclei। कि न्यूक्लियस किस तरह से बने हैं, एक सेल के अंदर दो से ज्यादा न्यूक्लियस कैसे बने, तो उस कंडीशन को हम डिफाइन करें। अगर मेथड ऑफ फॉर्मेशन के बारे में बात करें तब हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सिंसाइटियल इज द कंडीशन, in this condition cells have multiple nuclei due to dissolution of wall between two cells। ये दो सेल्स थी, मान लो एक थ्रेड लाइक हमारे पास टिश्यू था जिसके अंदर सेल्स इस तरह से लीनियर वे में अरेंज थी। ठीक है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, आगे एक सेल थी, पीछे एक सेल थी। ठीक है, इन सेल्स के बीच में अगर सेप्टा खत्म हो जाता है
तो अब ये एक इंडिविजुअल सेल बन गई, पहले यहाँ पर 2 सेल थी, अब ये एक बन गई क्योंकि इसके बीच का जो वॉल थी वो डिसॉल्व हो गई। देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड सिंसाइटियल। ओके, syncytial is the multinucleate condition. It is the multinucleate condition which is formed due to dissolution of wall, separation wall between cells. It is formed due to dissolution of separation wall between cells. Syncytic condition, it is formed due to cell division without cytokinesis. अब cytokinesis क्या है? मैंने बोला कि सेल डिवीजन हुई विदाउट साइटोकाइनेसिस, यानी कि सेल डिवीजन हो रही थी, सेल डिवीजन की प्रोसेस चल रही थी नॉर्मली, न्यूक्लियस की डिवीजन हो गई थी लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाया। तो उस प्रोसेस में क्या होगा? साइटोकाइनेसिस मींस सेपरेशन ऑफ टू साइटोप्लाज्म। ठीक है, यहां पर है इस सेल के अंदर न्यूक्लियस ने डिवाइड कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो इस सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई आ गई, इन सेल्स के अंदर अगेन 1 न्यूक्लियाई थी। So this is called as syncytic condition. This is syncytial condition. Otherwise, mostly these terms are used synonymously. And whenever we come to differentiate these terms, these can be differentiated in terms of formation of, in terms of method of formation of different nuclei. Okay. आगे हम बात करेंगे साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 5 to 25 माइक्रोमीटर्स, नियर अबाउट इतना साइज होता है न्यूक्लियस का। Again, you know that 1 micrometer is equal to 10 to the power minus 6 meters. Okay. जब हम बात करें न्यूक्लियस के साइज के बारे में, तो यंग सेल्स, जो यंग सेल्स होंगी और मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगी, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैव लार्जर एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, और उनका जो न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस occupies 25% of cell volume, सेल वॉल्यूम का 25% ऑक्यूपाई करेगा यंग और मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर। जितने भी यंग सेल्स जो फॉर्म्ड होंगी उनके अंदर जो न्यूक्लियस होगा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर दोज सेल्स व्हिच अंडरगो रिपीटेड डिविजन्स, रिपीटेड सेल डिविजन्स, है ना। प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो इस केस में 25% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। उसके अलावा साइज न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस होता है, साइज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन द सेल। अगर हम बात करें हैप्लॉइड, then diploid, and then polyploid. Haploid cells have smaller nucleus in terms of size of nucleus. I have arranged these in terms of size of nucleus. Haploid cells will have smaller nuclei, then diploid cells will have larger as compared to haploid, and polyploid cells have still larger nuclei. Okay, तो ploidy level से influence होता है size of nucleus. उसके अलावा cell the nucleus is more prominent in metabolically active cells. ठीक है, एक टर्म आती है न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, ये भी न्यूक्लियस के साइज से ही रिलेट करती है। ठीक है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन साइज ऑफ न्यूक्लियस and amount of cytoplasm. It is relationship between size of nucleus and amount of cytoplasm, that is called as nucleoplasmic index. Okay.